नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं आप गोल्डन मूवमेंट सेक्टर 12 करनाल से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मासिक बैठक होती है, उसको बैठक को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें आज माननीय सांसद सुशील गुप्ता जी का जन्मदिन भी था, उसको लेकर भी उनका जन्मदिन भी मनाया गया। तब इससे पहले ज्योति प्रेजेंट किया गया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का, जो एक रिवाज है कि उन तमाम बाबा भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह जी की प्रतिभा के आगे देखिए किस प्रकार से ज्योति प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइव तस्वीर है सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के गोल्डन मूवमेंट से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, जो आम आदमी पार्टी हर बार ज्योति प्रेजेंट कर अपना जो भी कार्य शुभ कार्य करती है उसकी शुरुआत करती है। इंकलाब जिंदाबाद। बेटे राष्ट्रगान के लिए बोलो, राष्ट्रगान आप बोलो। लगेगा ना आप बोलने में अलग बात हो जाएगी। हेलो, आउट सर्विस रिक्वेस्ट है, राष्ट्रगान स्टार्ट होने वाला है। प्लीਜ਼ ਗਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਵਾਸਥਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਸਥਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਰਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜੂ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੂੰਗੀ, ਜੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲੂੰਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੌਂ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਸਿੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸਿੱਖੋ। जिथे भ्रष्टाचार होता, क्योंकि धन्यवाद संदीप जी। साथियों, आप सभी को नमस्कार। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं वो कोई ऊपर मुद्दे की तरह नहीं है। वो एक स्ट्रांग पार्टी है, उनका संगठन भी बहुत स्ट्रांग है। तो उनसे लड़ने के लिए हमें अपने अंदर, हमारी पार्टी के अंदर हर लेवल पर प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है, हमारी पार्टी अगर देखोगे तो बहुत गुटों में भी बटी हुई है। ये सच है, सबको पता है, कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ, हाँ गुटों में बटी हुई है। अब तीसरा गुट एक और बन चुका है, उसमें नए लोग आना शुरू हो गए हैं। तो अब एक और
डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पार्टी में, डिवाइड एंड रूल वाला चल रहा है कि पहले 2 ग्रुप अलग थे, अब एक और आया कि उसमें हम कह रहे हैं कि ये तो नए लोग हैं। साथियों, जब तक ये चलेगा ना, नए पुराने गुट, तब तक हम नहीं जीत सकते। अगर हम यही सोच के चलेंगे ना कि मैं इस गुट का हूँ, मैं उस गुट का हूँ, मुझे इसको सहयोग करना है, हम नहीं जीत सकते। मैं ऑफिशियली बोलता हूँ, हम करनाल हारेंगे फिर अगर ऐसे करते रहेंगे तो। हम पार्टी के लिए हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। हमें आज की डेट में पता है क्या किसको टिकट मिल कि हमारे गुप्ता जी को बहुत लंबी उम्र दे। तो जैसे आप लोग आए हैं और पार्टी के बारे में सभी आप अपना मत दे रहे हैं, तो मैं मेहता जी से स्पेशल एक गुजारिश करता हूँ, जैसे हमारा संगठन पहले चला हुआ था, आप उसी तरज में चलो। आप भी पंजाब चुनाव होने के बाद, माड़े डलने के बाद कुछ और ही रूप लेंगे, ऐसे नहीं चलेगी पार्टी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले हम एक दूसरे से बार बार फोन करते थे, भाई जी आना है, भाई जी आना है, तब हम इकट्ठे होते थे और खुशी से आता था अगला आदमी भी भारी सा बन के, भाई मेरे को बुलाया है। अब ऐसा से कर रहे हैं कि भाई घेर दिया मैसेज मैंने, तो देख लेंगे जो आएगा तो देख लो। फिर हकीकत कितनी जल्दी आ रही है सामने। वो एक तूफान था, आंधी थी, उसमें सब कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन भाई बुलाने पड़ेंगे मेहता जी। ऐसे मैसेज डालने से कोई नहीं आएगा, मेरे को जो लग रहा है। बाकी आप खुद समझदार हो, जितने भी भाई हो, बाकी आप है ना रीढ़ की हड्डी हो जो लगातार आ रहे हो। कुछ भाई नए भी हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं, जैसे हम चलते आ रहे हैं पुराने समय से, उनके अंदर भी एक जज्बा है, वो भी एक मैं सबको सल्यूट करता हूँ। बाकी जितने भी आपके संपर्क में लोग आते हैं तो प्लीज बुला ला करो। बुलाने से ना तो कोई हड़बड़ता और भाई संगठन दिखना चाहिए। अगर हम बार बार ऐसे ही और कम होते चले गए तो पार्टी का ये मैसेज गलत ही जाता है, किसी के पास भी जाता है। तो गैदरिंग हमारी कम से कम भी 50-60 आदमी तो होने चाहिए जब भी कोई आम मीटिंग हो। तो धन्यवाद मेरे भाई, कोई गलत बात निकली हो तो मैं माफी मांगता हूँ। संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था बिना फंड के नहीं चलती। उस फंड के लिए भी हम बातचीत करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक पार्टी ने कुछ ड्यूटियां लगाई थी, कुछ फॉर्म दिए थे, वॉलेंटियर फॉर्म, और कुछ साथियों ने वो फॉर्म लिए, वो बुकलेट ली। पार्टी का मेन उद्देश्य था कि वार्ड तक, नीचे बूथ तक संगठन को लेके जाना। यहाँ बैठे जितने भी साथी हैं हमारे, हर साथी का उद्देश्य एक तो है कि किसी भी तरह से सर हमारे करनाल जिले के जिले संगठन मंत्री लाडी संधू जी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर आप यहाँ पे आइए, सर कार्यकर्ता का स्थान है। सुनील बिंदल जी का, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो वॉलेंटियर बुकलेट है, जिस साथी ने भर दी है और ऊपर व्हाट्सएप कर दिया है, जो पार्टी का कंट्रोल रूम नंबर था या अभी करना है, वो अपनी बुकलेट मुझे जमा करा दे। जिन्होंने व्हाट्सएप कर दिया है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो फिर मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। दूसरा, इस बुकलेट का, इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या था कि पार्टी का वार्ड तक हमें डाटा लेके जाना, वार्ड तक हमें टीम गठित करना, नीचे बूथ तक हमें टीम गठित करना। लेकिन कुछ साथी, बड़े शर्म के साथ मेरे को कहना पड़ता है, कुछ साथी कर्मठ तो है, काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। और एक बड़े शर्म के साथ दुखद भी कहना पड़ता है मेरे को कि परसों ही मुझे सुबह डांट भी खानी पड़ी। सुबह जो गुप्ता जी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर हम ज्वाइन करते हैं, हमें अपने विधानसभा की रिपोर्ट उसमें रखनी पड़ती है। उस रिपोर्ट के अंदर करनाल विधानसभा इस डाटा को पहुंचाने में, करने में सबसे पीछे पे चल रही है। आज की इस मीटिंग के अंदर लगभग हमारे पास 250 के आसपास कार्यकर्ताओं का डाटा है जिनके पास मैसेज भेजा गया था, और आप देख सकते हैं कि कितने जने उपस्थित हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी क्या नाम है, खट्टर सरकार को उखाड़ पाए। क्या ऐसे होगा?
जब हम लोग मीटिंगों में नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, डाटा को नहीं करेंगे, जमीन पर काम नहीं करेंगे, कैसे उखाड़ पाएंगे? दोस्तों, एक तो मैं आप लोगों के आगे प्रपोजल रखना चाहता हूं कि हमें अब वार्ड वाइज डोर टू डोर हमें प्रचार करना चाहिए, जिससे हम डाटा कट सकते हैं। क्योंकि हर विधानसभा का लगभग 400 से 500 आदमियों का डाटा, आदमियों का नहीं, फार्मों का वो जा चुका है। और कईयों का तो 3-3, 4-4 हजार फार्म जा चुके हैं। और हमारे तो आप लोग देख लीजिए, आज यही आए हैं जो मेरे पास है। कितने हैं, मैं जवाब देने लायक नहीं हूँ। बड़ी शर्मिंदगी की बात करनाल विधानसभा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमें या तो जमीन पर उतरना चाहिए, फिर वार्ड टू वार्ड, डोर टू डोर हमें करना चाहिए, तभी हम डाटा इकट्ठा करके भेज सकते हैं। नहीं तो करनाल विधानसभा के लिए डूब मरने वाला है। सीएम सिटी है हमारी, सीधी टक्कर सीएम के साथ है, और इन हालातों में हम नहीं लड़ सकते। पार्टी तुरंत प्रभाव से हटा देगी, क्योंकि पार्टी का हर हालत में ये सीट जीतती है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, आगामी 9 तारीख को, बिंदर जी, आगामी 9 तारीख को करनाल विधानसभा की मीटिंग है, शाम को 5 बजे। माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी उस मीटिंग को लेंगे। सर, 9 तारीख की मीटिंग के लिए 9 तारीख की मीटिंग जो है अभी बता देंगे। अगर यहाँ जगह अवेलेबल होती है तो हम यहीं रखेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरी जगह मानव सेवा संघ है। इसमें गुप्ता जी मीटिंग लेंगे इसको, और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह रहेगा, हाँ जी हरी जी, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहेगा आगामी 29 मई को अरविंद जी की जो रैली है उसमें कौन कितने साथी लेके जाएगा, वो गुप्ता जी सभी से, इसलिए अपनी तैयारी पहले से करके आना। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मुझे आज और कल के लिए 4 से 8 साथियों की जरूरत है। कुछ सर्वे करवाना है पार्टी ने करनाल के अंदर या आसपास के गांव में भेज सकती है, ड्यूटी लगा सकती। जो साथी स्वेच्छा से इच्छुक हो सर्वे में जाने के लिए, वो अपने नाम मुझे दे कर दें, ताकि मैं अपने उत्तरी जोन के संगठन मंत्री सुखबीर भाई को वो नाम दे सकूं, उनकी जहाँ पे भी ड्यूटी लगे। कुछ पार्टी इंटरनल तौर पे कुछ जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है मुझे इस विषय में नहीं बताया गया। मुझसे कुछ साथियों की डिमांड की गई, तो मैं अब अनुरोध करूँगा, कोई साथी ने जिन्होंने पिछले महीने जो भी वर्किंग की वो अपना ब्यौरा रखें, और साथ में आगामी हम इस महीने में क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो भी, या कुछ और भी बताना चाहे। कोई साथी आना चाहता है?